ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ, ਚਮਚੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬੈਗ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਨ ਮੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लास्टिक ਨੂੰ त्यागना पवेगा। महाकुंभ अगर प्रयागराज की बात की जाए, देश भर से जो है करोड़ों श्रद्धालु जो है वहाँ पर नहा आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। इनकी तरफ से एक अच्छा उपराला किया गया है। जब लाखों की या करोड़ों की संख्या में जब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं किसी भी जगह पर, तो वहाँ पर जो लोग खाना खाया जाता है वो जो प्लास्टिक की जो पत्तल होते हैं उसको लेके जो है इन्होंने एक मुहिम शुरू की है। बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें, एक अच्छी मुहिम शुरू की है आपने बताया कि एक थाली और एक थैला जो था, क्या ये पूरी मुहिम है? और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि प्रयागराज में आपने जो है वहाँ पर पहुँचे थे और साथ ही जो है जो वहाँ पे प्लास्टिक से जो बनी हुई जो प्लेटें थी उनका अपने जो है प्रयोग जो है ना हो, उसको लेके जो अच्छी पहल की है, किस तरह से देखते हैं? ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾय ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਗਾਵਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਹੈ। तो जीव जंतु भी मर रहे ने। ऐसे ही प्लास्टिक मिट्टी च मिल जाता है, बरसात होंदी है, वो बरसात का पानी जमीन च नहीं जा रहा, इसलिए जो वाटर लैवल है वो घट रहा है। तो पानी का रिसाव धरती दे विच होए उहदे च प्लास्टिक रुकावट है। जल, जमीन, जंगल, जानवर, जीव जंतु सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ जो प्लास्टिक रूपी राक्षस है ये खतरनाक है। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਥੈਲੀ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਉਧਰ 2.5 ਲੱਖ ਗਲਾਸ ਵੰਡੇ, 10.25 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 85% ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਥਾਲੀਆਂ ਔਰ ਗਲਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਮ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ हैं, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਏ हैं। ਇਸ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 85% ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਦਾ ਕਚਰਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਚਾਹੇ ਥੈਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅન્ય ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੈਲੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? मैं महाकुंभ में गई तो जो हमारा थैला और थाली जो बटे हैं, हमने बड़ा इस चीज़ को नोटिस किया कि लोग इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, संस्थाओं ने यूज़ किया और उससे प्लास्टिक पोल्यूशन भी काफ़ी कम हुआ है। डिस्पोजेबल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक काफ़ी हद तक इसकी मात्रा जनरेट होती, वो काफ़ी हद तक कमी आई है। जैसे भाई साहब ने बताया करीब करीब 85% वेस्ट रिडक्शन हुआ है और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है जीरो कार्बन एमिशन की तरफ। तो ये अभियान के तहत बड़ी अच्छी कोशिश की है, लोगों ने काफ़ी सराहा भी है और एज ए इन्वायरमेंट एक्सपर्ट भी हमने इस चीज़ को ग्राउंड रियलिटी में नोटिस भी किया है कि इसका काफ़ी सक्सेसफुल
सक्सेसफुल ये अभियान रहा हमारा। सरकारें समय समय पे जो है लोगों को अवेयर कर रही हैं, चाहे एक्टर्स की बात करें वो भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उनका भी साफ तौर पे कहना है कि प्लास्टिक की वरतों ना कीजिए। हालांकि अगर बात करें, कई कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहेंगे, कई कंपनियां ऐसी भी हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए या अन्य चीज़ें हैं वो प्लास्टिक की थैले में ही जो है देती हैं। तो सरकार इस पर काम क्यों नहीं कर रही है? और आपकी चाहे संस्था है या जिस तरह से आपने एक अच्छी पहल की है, आप आगे के आने वाले दिनों में क्या कदम उठाने वाले हैं? देखिए, सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत एक प्रावधान बनाया है कि जो भी किसी भी तरह का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके प्लास्टिक के मैनेजमेंट के लिए उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और धीरे धीरे सरकार ने कई रूल्स के तहत उनकी थिकनेस भी बढ़ाई है। अब करीब करीब आप कह लीजिए, शुरू में 40 माइक्रोन थिकनेस थी, फिर 100 पे लेकर आए, 120 पे लेके आए, ताकि उसका डिस्पोजल जो ठीक तरीके से हो जाए। क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग तो रहेगा, बट हमारी प्रॉब्लम है सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, उसको हमने कम करना है। और जो भी प्लास्टिक आज की डेट में, आप जैसे थैले, दूध की थैले की बात कर रहे हैं, तो उसकी थिकनेस भी अब बढ़ाई गई है। और जब वो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा, उन ही कंपनीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उस प्लास्टिक को वो कलेक्ट करें और उसके मैनेजमेंट एंड सेफ डिस्पोजल की तरफ भी कदम उठाएं। आखिरी सवाल है, अक्सर देखने को मिलता है जो पशु हैं अक्सर जो है पॉलीथीन खा लेते हैं और उनसे जो है कई पशुओं की जो है मृत्यु भी है। अक्सर समाज सेवी संस्थाएं दावे ज़रूर करती हैं, चाहे गऊ की बात करें, चाहे अन्य डॉग्स या अन्य जानवरों की बात करें, इस पे जो है अंकुश कैसे लग सकता है कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवेयर हो कि जो है जो जानवर जो है उनकी मृत्यु ना हो? देखिए, जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल आया, उसमें बहुत सही तरीके से एक प्रावधान था कि सॉलिड वेस्ट को सेग्रीगेट करें, ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उनको जो बचा हुआ खाना हो गया है, वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको हम प्लास्टिक की थैलियों में बांध कर इधर उधर ना फेंकें। पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि जो पशु हैं उस भोजन को खाने के लिए थैली के समेत ही उसको ले जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, प्लास्टिक वेस्ट को और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को इनको सेग्रीगेट करें, ताकि खाने को प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर बाहर ना फेंके। तो अब क्योंकि हमारे लिए जागरूकता उतनी ही ज़रूरी है। लोग कई बार जागरूक हैं, कई जगह पे जागरूक नहीं है। जो जागरूक हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और एज ए आप लोगों के माध्यम से हम भी ये आह्वान करना चाहते हैं कि लोग जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना यूज़ करें, और बचा हुआ खाना है या किसी भी तरह का ऐसा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको सही तरीके से डिस्पोज करने में मदद करें। बिल्कुल साफ तौर ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਸ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ANB ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਅਮਿਤ ਸੇਠੀ ਦੀ